ان کا سوال یہ پتنگ مانگنا یا بیچنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. جو کام میں بتا رہا پتنگ اڑانا جائز ہے تو بیچنا بھی جائز ہے. اسلام میں جو کام مطلب حرام ہے ان کی کمائی بھی حرام، جو چیزیں حلال ہیں ان کی کمائی بھی حلال. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو گھر بار ٹوٹ گئے جگہ جگہ جہاں پہ، ان کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس بہترین ہتھیار ہے دعا. اپنی دعاؤں میں انہیں ضرور شامل حال کریں. دوسرے جتنا بن پڑے آپ سے جیسی حیثیت ہو ان تک مدد پہنچائیں. ان کا سوال بہن کی طرف سے یہ ہے کہ بچے کی ایف ڈی کرا سکتے ہیں کیا؟ بھائی ایف ڈی بالکل حرام ہے اسلام میں. آپ بچے کے نام سے سونا خرید کے رکھ لو وہ جائز ہے، لیکن ایف ڈی کرا کے اس پہ پھر اسے چھڑانا 5-10 سال بعد وہ بالکل حرام ہے، اس میں بیاج آتا ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے اعتکاف میں اگر ناپاکی ہو جائے اور کپڑے نہ ہوں تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی آپ نے انتظام کیوں نہیں کر کے رکھا؟ آپ جب اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں 10 دن کے لیے تو آپ کپڑے وپڑے لے کے رکھو. اس کا مطلب آپ نے لاپرواہی کی. تو اس ٹائم تو آپ کی مجبوری یہ ہے، آگے کے لیے آپ کو انتظام کرنا چاہیے. اس ٹائم تو آپ تیمم کرو اور نماز پڑھو اگر وہاں آپ کے پاس کپڑے وپڑے نہیں ہیں. ورنہ آپ غسل کرو، غسل خانے سب مسجدوں میں ہیں، کپڑے ہی پاک کر لو، گیلے کپڑوں میں نماز پڑھ دو. بہتر یہ ناپاکی سے. آپ جماعت میں نہیں بھی شامل ہو پا رہے، جلدی سے غسل کرو. ٹائم جماعت کے بعد بھی کافی ہوتا ہے، آگے اپنی نماز پڑھ دو. لیکن کوشش یہ کرو پاک کپڑے ہوں، پاک جگہ ہو اور غسل ہوا ہو. ہاں جی. اگر جھگڑے میں مرد کہے کہ ہم ایسے لڑ رہی ہے کیا طلاق چاہتا ہے یا طلاق کریں کیس طرح طلاق ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے جھگڑے میں اگر مرد کہے کہ تو طلاق کے لیے لڑ رہی، تجھے طلاق دے دوں گا اگر تو چاہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں ہوتی ہے. تو مشروط ہے نا. ہاں اگر عورت طلاق مانگ لے اور مرد کہہ دے کہ ہاں بھائی تم طلاق مانگ رہے ہیں میں دے رہا تو ہو جائے گی. آپ ان کا سوال یہ کسی کی ٹانگیں کٹ گئی تو ان ٹانگوں کو ایسے ہی دفنا دیا گیا، کیا ان ٹانگوں کا غسل ضروری تھا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں تھا. اگر کوئی بندہ پورا کا پورا کٹ جائے اور اسے سارے اعضاء مل جائیں تو پھر انہیں اکٹھا کر کے غسل دے کے اور پھر کفن دفن کرنا ہے. ورنہ کسی بھی کپڑے میں لپیٹیں اور مٹی میں دبا دیں. قبر کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر صرف ٹانگیں ہیں. ہاں جی. مسلم کا بلڈ یوز کر سکتے ہیں؟ جیسے کسی طبیعت خراب ہو جائے بلڈ کی ضرورت ہے تو اس میں کیا لے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا غیر مسلم کا بلڈ لے سکتے ہیں؟ بھائی جب سور کا دل لے سکیں تو غیر مسلم تو ہمارے بھائی ہیں. اگر آپ اپنے دادا پڑدادا لکڑ دادا تک اوپر پہنچ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک تو سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کا خون لال ہے. آپ خون دے بھی سکتے ہو اور لے بھی سکتے ہو، کسی کی باتوں میں نہیں آنا. یہ سب ہمارے بھائی ہیں. جس دن ایمان میں آ گئے اس دن دینی بھائی ہو گئے. آپ جب بینک میں بڑے پیسے مرنے کے بعد نامنی کے ہوں گے یا سب وارث ہوں گے؟ اچھا بھائی ایسا ہے جب بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے تو اس میں نامنی بھرا جاتا ہے ایک نام کہ بھائی اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو اسے پیسے دیں گے. وہ پیسے اس نامنی کے ہوں گے ڈیتھ کے بعد میت کے یا پھر پورے وارثوں میں بٹیں گے. بھائی نامنی تو ایک شکل ہے قانون کی جو بینک کا قانون ہے، ورنہ پیسے جو ہیں مرنے کے بعد تمام وارث ہو گئے ہیں. مان لو اس نے اپنی کسی بہن کو یا بیوی کو یا بیٹے کو نامنی بنا دیا تو وہ پیسے نکال کے تمام وارث ہوں گا. ہاں جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ لون لیتے ہیں. ہاں. ان کا سوال یہ ہے بیاج لینا تو ہمارے پاس میں ہے کہ ہم نہ لیں، لیکن جب ہم کہیں سے لون لیں گے تو دینا پڑے گا. بھائی حدیث یہ ہے نبی کی، بیاج کا لینے والا، بیاج کا دینے والا، بیاج کا لکھنے والا، بیاج کا گواہ سب ایک ہے. ایک اور حدیث سنا دوں، بیاج کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر دیا، بھوکے مر جاؤ. قرآن کی سب سے سخت آیت مانتا ہوں میں اسے، 279 نمبر آیا کہ جو لوگ بیاج کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے بھیک جائز ہے، بھیک مانگ لو. آپ
ज़कात मांग लो, चाहिए भी लो, लेकिन ब्याज पे पैसे मत लो। अल्लाह को राजी रखो, बंदों को राजी मत करो। बंदों की शर्म में आप ब्याज पे पैसे ले लेते हो और भीख नहीं मांगते। भीख मांगना चाहिए है। अगर ऐसी कोई मजबूरी हो कि आपके पास खाने को नहीं है, आपके बच्चे तड़प रहे, मदीने में चप्पे चप्पे पे यहूदी बैठे थे पैसे देने के लिए ब्याज पे, लेकिन ना किसी साहबी ने लिए ना हुजूर ने लिए। तो इसलिए हमें तालीमात दे के गए हो, आप जब भी कहीं फंसो तो सीधे 14 साल पहले चले जाकर तो रसूल ने क्या किया इस्तेमाल। ठीक है। इनका सवाल यह है क्या नकली चीजों के लेवल छापने ठीक है? हाँ बिल्कुल, कोई हरज नहीं है। आपकी तो प्रिंटिंग प्रेस है, वो उनका क्या कर रहा है उनकी मर्जी। आप तो अपना काम कर रहे हैं ना, आपको इसमें शामिल थोड़ी हो। हाँ अगर आप नकली चीजें बेच लो फिर भी करो। जो नाम होते हैं मोहम्मद के नबी और इनका सवाल ये अल्लाह रसूल के नाम लिखे हो कहा सुबह हम उन्हें फाड़ देते हैं, इसमें क्या भाई? देखो अगर विद्यार्थी ने फाड़ा तो फिर तो कोई बेइज्जती नहीं है, वरना ये बेइज्जती में आएगा। तो इसलिए आप उठा के रख लिया करो और मस्जिदों में रखवा दिया करो ऐसे फटे हुए कागज जिनका अल्लाह रसूल के नाम है। जहाँ तक आपसे किया तो आपको करना चाहिए। ये नमाज हर सूरत में नमाज का हर सूरत में जैसे बीमार है और ठीक है। सवाल ये नमाज का हर हालत में हुक्म है या कोई छूट भी है? सिर्फ बेहोश हो आदमी और या फिर दीवाना हो, इनसे कलम उठा लिया अल्लाह ने। बाकी बीमार हो, बिस्तर पे पड़ा हो, इशारे से पड़े, जंग में हो, जंगल में हो, सवारी पे हो, हर जगह नमाज पढ़नी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित है ये बात, कुरान की आयतें हैं। जंगल में तो यहाँ तक कहा सहाबाए किराम को एक जमात हुजूर के पीछे एक रकत पढ़ ले और फिर वो हथियार लेके खड़ी हो जाए, फिर पहले वाली रकत, दूसरी वाली रकत, पहली वाली जमात पढ़े। तो यहाँ तक तो हुक्म है, मतलब जमात भी नहीं छोड़नी। लेकिन मजबूरी में अगर जमात छूट जाए सफर में तो कोई हरज नहीं है। सवारी पे भी हुजूर ने नमाज पढ़ी, जंगों में भी पढ़ी, जंगल में भी पढ़ी, बीमारी में भी पढ़ी। आखिरी 14 दिन ऐसे गुजरे कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, बेहोश हो जाते थे खड़ा करें तो बैठ के पढ़ी। आप लेट के पढ़ दो, इशारे से पढ़ दो, लेकिन नमाज की वक्त पे ना माफ है और ना ऐसा होगा, क्योंकि जितने भी अमाल हैं हुजूर ने बात फरमाई कि सबसे पहले नमाज का हिसाब हो। जितनी भी इबादत है ना उनमें सबसे पहले नमाजों का हिसाब था। इनका सवाल यह नकली फिक्स दांतों या नकली फिक्स बालों, यानी जो वीगे आजकल फिक्स आ रही हैं उन पे वजू हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है भाई। जिन्होंने प्लांट करा लिए फिक्स हो गए तो वो बिल्कुल उनका वजू उसको हो जाएगा। टाइम भी देखिए 10:15। हाँ मगरिब की नमाज का वक्त कितनी देर तक है? इनका सवाल है मगरिब की नमाज का वक्त कितनी देर तक रहता है? भाई मेरे नज़दीक जो मैंने पढ़ा है वो 1 घंटे तक रहता है। वैसे तो बहुत से उलमाए ये कहते हैं कि हर नमाज का वक्त अगली नमाज के वक्त से पहले पहले, लेकिन आप जितनी जल्दी नमाज पढ़ देंगे उतना दिल भी आपका हल्का हो जाएगा। इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई शिकायत नहीं होगा। तो मगरिब की नमाज आप अजान होती है 1 घंटे के अंदर पढ़ लें। गैर मुस्लिम के यहाँ मुलाजमत या नौकरी जैसे करते हैं और हमें पता है वो मुसलमानों के खिलाफ है बिल्कुल, तो उसके यहाँ क्या हमें काम करना चाहिए या नहीं? इनका सवाल यह है किसी गैर मुस्लिम के यहाँ हमें पता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो क्या उसके यहाँ काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि आप इस तरह का किरदार पेश करो उसके सामने कि उसकी नफरत कम हो जाए मुसलमानों से। आपको तो चांस दिया अल्लाह ने। देखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में पैदा किया जहाँ चारों तरफ इस्लाम के भी दुश्मन थे, नबी के भी दुश्मन थे, लेकिन अपने कैरेक्टर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सिद्दीक और अमीन कहलाया उन लोगों को। लोग वहाँ के जो मुशरिक थे, काफिर थे मक्के के, अपनी अमानतें नबी के पास रखवाते थे। आप याद करो ना, जिस रात हिजरत की है उस रात हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया और ये कहा कि कल को जिन लोगों की अमानतें हैं ये वापस करके तब आना। हालांकि दुश्मन बाहर कत्ल करने के लिए बैठे, तो जो लोगों की अमानतें थी वहाँ भी नहीं भूले। तो अपने करेक्टर से आप उस गैर मुस्लिम भाई के यहाँ नौकरी करके ऐसा करेक्टर पेश करो, ऐसी ईमानदारी, उसके माल से इतनी मोहब्बत, उससे इतनी मोहब्बत। अब आप देखो ना, आप एक बिल्ली का बच्चा जलता हुआ देख लो, या बिल्ली या कुत्ता आग में, क्या गिलगिली होगी आप, और आपको ये अंदाजा है आपके ईमान का हिस्सा है, आपको पता है कि आग की तरफ जा रहे हैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको अपने उस मालिक से मोहब्बत होनी चाहिए कि मैं किस तरह से आग से बचा दूँ।
आप दुआ भी करो उसके लिए और अपना ऐसा करेक्टर भी पेश करो कि वो मुसलमानों, अगर मुसलमान ना भी हो तो कम से कम मुसलमानों से नफरत उसकी खत्म हो जाए। और ऐसे बहुत सारे के मेरे पास आते हैं कसम से, बड़े बड़े कट्टर साधु तक, और जब वो जाते हैं उनकी आंखों में आंसू का होते हैं ऐसे लोग। बाधा बाधा तो नीचे बैठे, आपकी मोहब्बत, आपकी जो गमख्वारी है ना और खैर ख्वाही उनके लिए, वो उनके दिलों तक पहुंचती है। उन्हें एक बार लग जाए कि हमारा खैर ख्वाह है। इनके तो अकीदे इतने कमजोर हैं तो आपको भगवान कहने लगे। हाँ जी, इनका सवाल समझिए भाई। मैंने कहा था हजरत माविया ने नामजद किया था, वो चाहे मशवरे से ही किया था। मेरे से सवाल ये किया गया था कि यजीद को किसने बिठाया गद्दी पर, तो उस टाइम जो खलीफा थे उसके वालिद थे, उन्होंने बिठाया था, चाहे उन्होंने मशवरे से बिठाया। सवाल ये नहीं था कि उन्होंने क्यों बिठाया, सवाल ये था कि बिठाया किसने था। बिठाया उन्होंने था, चाहे वो शुरू से मशवरा करके, चाहे वो फैसला। ये तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं गलत फैसला हुआ था, उन्होंने अपने भाई को गवर्नर बना दिया था। ये तो फैसले में गलती तो होती है, कोई नबी थोड़ी थे, वो साहबी थे, उनसे गलती हुई। यहाँ तक कि हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ तक से गलती हुई। वो खुद कहते थे इस बात को कि मैंने जो सुलह हुदैबिया हुई उस टाइम हुजूर का हुक्म नहीं माना, मेरे से गलती हुई, मैंने एकदम अपना खुद नहीं करा जानवर। तो ये तो साहबी थे, इनसे गलतियाँ हो सकती हैं, चाहे उनकी नीयत सही हो, लेकिन गलतियाँ सबसे हो सकती हैं सिवाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया गए, ये मासूम थे। मेरे ख्याल टाइम। हाँ जी, आप बताओ। इनका सवाल ये है, सहाबा इकराम सितारों के मामिंद हैं, इसका क्या मतलब है? नबी की हदीस है भाई, ये चमकदार लोग हैं, इनकी जिंदगियों से कुछ सीखो, ये तुम्हारे लिए रोशनी है। मतलब इनकी जिंदगी में किसी एक सहाबी की जिंदगी आपने पकड़ ली, क्योंकि वो तरबियत याफ्ता थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप देखो ना कहाँ से निकले वो, कहाँ तो हुजूर के दुश्मन थे और खून के प्यासे थे, और कुरान सुनने पे सीटियाँ बजाते थे, शोर बजाते थे और नेगलेक्ट करते थे कुरान को, और कहाँ फिर उन्हें सुरूर आने लगा था कुरान में, और नबी की ऐसी मोहब्बत के अल्फाज ये होते थे कि हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो इसलिए वो सितारों के मानिंद इसलिए कहा कि इनसे तुम्हें रोशनी मिलेगी, इनके बताए हुए रास्ते पे तुम चलोगे तो तुम भी फला पा जाओगे, तुम भी सितारे बन जाओगे।